बताइएगा सिंह साहब कि ये जो सारा प्रोटेस्ट है, इस प्रोटेस्ट में क्या कोई ऐसी स्पेस बचती है, कोई ऐसा रास्ता निकलता है कि ये प्रोटेस्ट ख़त्म हो सके, या आप और आपके जितने साथी इस वक्त ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली के अंदर वो डिटर्मिन्ड है कि हमने हुकूमत को घर भेजना और उनको ये कवानीन वापस लेने होंगे मोदी सरकार को? उन्होंने वापस कराउण तो बगैर घरां नूं मुड़ जाण तां उन्हां नूं अपनी इहदे विच मौत दीदी अपना फ्यूचर उन्हां नूं नहीं दिस रिहा। सो उन्हां लिए जरूरी आ कि जो कानून जिहड़े पास कीते आ तैन ये सरकार वापस लवे एंड वो फिर अपने वैसे जस्ट फॉर योर इनफॉर्मेशन जी ते बहुत सालों तो बहुत ज़्यादा जिहड़ी गिणती किसानां दी आत्म हत्या कर रही, काफ़ी लोग गिणती विच आत्म हत्या कर रहे हैं। जे कानून वापस होगा आत्म हत्या फिर भी हुंदियां रहणीआं। ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਵੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕਦੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ, ਕਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹੋ ਗਏ। 150 ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਬਰ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਆ ਨਾ ਮੈਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੰਗਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਆਰ ਐਟ ਦਿਸ ਸਟੇਜ ਨਾਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਸੁਰ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਉਹ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗਲਤ ਤਾਸੁਰ ਹੈ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਕਹ ਸਕਦਾ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਾਰਮਰਸ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜੀਣ ਨਾਲੋਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓ, ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਹਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਰਚਿਸ ਕੀਤੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਰਚਿਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਲਿਆ ਕੁਛ ਮੁੜ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲੋ ਡੈਥ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੋ ਮਾਈਟ ਇਸ ਵੈਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੁੜਨ। सो उन्होंने लिए हुण को राह नहीं, एक कानून वापस ले तो बगैर उन्होंने वापस नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तुसी मेरे नाल रहो जग्गा साहब। रवि साहब आपकी तरफ बढ़ता हूँ। सर ये बताइए ज़रा एनालाइज़ करें, आप बड़े करीब से सारे मामलात को देख चुके हैं बीजेपी गवर्नमेंट के। ये बताएं हमें, हमारे व्यूअर्स को, कि जो मोदी सरकार है, जो अमित शाह सरकार है, यानी इन दोनों का जो जॉइंट वेंचर है और ये जो पॉलिसीज़ लेकर चल रहे हैं अपने इस सेकेंड टेन्योर के अंदर, इसने इंडिया को विद इन इंडिया आपको लगता नहीं है कि उस नहज तक पहुंचा दिया जो शायद आज से पहले कभी नहीं थी, और आउटसाइड इंडिया भी उस नहज तक पहुंचा दिया जो आज से पहले कभी नहीं थी? ये तासुर ऐसा है
अगर है तो क्या आपके ख्याल से दुरुस्त है या ये गलत, ऐसा कुछ भी नहीं है? मुर्तजा साहब, बहुत गलत है, बेइंतहा गलत है। जो पहले 5 साल मोदी सरकार रही उस वक्त में ये अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहे थे। उस समय में इन्होंने कोई बड़े डिसीजंस नहीं लिए जिससे डिवीजन पैदा हो। लिए कुछ एक लिए इन्होंने, जैसे डिमोनेटाइजेशन था, जीएसटी था, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो सब बर्बाद होता गया बिल्कुल। जब से इनका सेकेंड टेन्योर चालू हुआ मई 2019 से, इन्होंने ये डिसीजंस लेने शुरू किए जिससे हिंदुस्तान बंटवारा होना शुरू किया। जैसे चाहे वो राम मंदिर का डिसीजन हो, चाहे वो सीएए, एनपीआर, एनआरसी का डिसीजन हो, और अभी अभी आप ये देख रहे हैं जो ये किसानों का मुद्दा जो है वो इस कदर अब फैल गया है। ये सरकार जो है ये यहाँ के कुछ 4-5 जो टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी गुलाम, उनकी पिट्ठू बन के रह गई है। इनका हर एम, इनका हर डिसीजन इस दिशा में है कि किस तरीके से उनकी दौलत जो है वो मल्टीप्लाई होती जाए। यहां पर आपने देखा होगा ये 2-3 जो कुनबे हैं यहाँ पे, उनकी जो एसेट्स हैं वो एक साल के अंदर 4 गुना 5 गुना बढ़ गई हैं, और जो गरीब है वो गरीब तबाह होता जा रहा है, नौकरियां खत्म हो रही हैं। और अब किसानों को ये दिख रहा है कि ये जो इस तरीके का ये बिल ला रहे हैं, इसको ला करके अंततः वो किसान जो है वो खुद अपनी जमीन पे मजदूर बन के रह जाएगा और मालिकाना हक इन प्राइवेट हाउसेस को चला जाएगा। ये बिल कुछ इस तरह का है। तो जो ये आड़तियों वाली बात है, मैं इसमें मानता हूं कि आड़तियों को जितना कम रखा जाए वो ठीक है, मगर जिस तरह के कानून ये बना रहे हैं वो ये थे कि जो आप उसके खिलाफ शिकायत भी करनी है तो कोर्ट आप शिकायत भी नहीं कर सकते कोर्ट में जाकर के। तो इसके बारे में तमिलनाडु के किसानों ने भी काफी दिल्ली के अंदर प्रदर्शन पहले किए थे। और ये जो किसान आंदोलन है ये 65 दिन का नहीं है, ये पिछले 6 महीने से चल रहा है। वहां पे कांग्रेस के राहुल गांधी ने पूरे पंजाब के अंदर ट्रैक्टर रैली निकाली थी और तमाम हजारों लोग उसमें शामिल हुए थे। वहां पे रेल रोको हुआ, गाड़ियां बंद कर दी गई, और अब वो किसान मजबूर होकर के दिल्ली के बॉर्डर पे आके इस 1 डिग्री 2 डिग्री ठंड में पिछले 2 महीने से बैठे हुए हैं। 100 से ऊपर उन लोगों की मौतें हो चुकी हैं। और आज का दिन, मैं आपको बताऊं कि आज का दिन शायद हिंदुस्तान के इतिहास में एक तरीके का काला दिन होगा कि जहां पर ये गणतंत्र दिवस, अपना जो रिपब्लिक डे मना रहे हैं, वहीं पर एक ट्रैक्टरों की परेड दिल्ली कैपिटल के अंदर हो रही है। और उन लोगों ने जो दिल्ली का मशहूर लाल किला है उसके ऊपर एक झंडा फहराया जाकर के जो गुरु नानक देव जी का है, तो वो झंडा वहां पे लगा दिया गया जाकर के, और पूरे शहर के अंदर ट्रैक्टरों की पूरी भीड़ लग गई, पूरे ट्रैफिक जैम हो गए, और एक शख्स की मौत भी हो गई है। उसकी अभी पक्की जानकारी नहीं मिली है कि वो ट्रैक्टर उलटने से एक्सीडेंट हुआ या पुलिस ने कोई एक्शन लिया उसकी वजह से मौत हुई, मगर एक शख्स की 26 साल के मौत भी हो गई है। आज अभी तक तो हम ये बहस जहां तक लेके जा चुके हैं वो ये कह रही है कि जो मोदी सरकार और उनके जो पॉलिसी मेकर्स हैं, इनकी पॉलिसीज में शदीद मसले हैं। और ये आप या मैं नहीं कह रहे, बहुत सारे थिंक टैंक्स कह रहे हैं, एनालिस्ट कह रहे हैं, बहुत सारे नाकिदीन ये चीज़ कह रहे हैं कि दिस इज़ वेयर इंडिया इज़ हेडिंग। अब अगर इस चीज़ का इतलाक वो विद इन इंडिया कर रहे हैं तो वो इंडिया से बाहर भी कर रहे हैं। जिस मुल्क को मसला होता है वो इसका जिक्र करता है। पाकिस्तान को ये लगता है कि वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है इंडिया का, जिसका वो बार बार ब्लेम भी करता है, क्लेम भी करता है और इस आवाज़ को आगे पहुंचाता भी है। अब अगर पाकिस्तान ये कहता है तो इंडिया उसको कहता है नहीं जी ये तो हमारा दुश्मन मुल्क है इसलिए यूँ कह रहा है, चूँकि उसने तो कहना ही, अगर हम अच्छा काम भी कोई करेंगे तो ये तमाम चीज़ें क्या एक एविडेंस के तौर पे सामने नहीं आ रही कि एक ऐसी गवर्नमेंट, एक ऐसा माइंडसेट, ऐसे लोग यहाँ पर आकर बैठ चुके हैं जो इंडिया सेकुलर स्टेट होने का कभी सीना चौड़ा करके दावा करता है कि जी हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, हमारे यहाँ हर तरह के रंग नस्ल के लोग रहते हैं और हम बड़े अच्छे तरीके से लेकर चल रहे हैं। अब ऐसा नहीं है। मैं इसकी कई एग्जांपल्स दे सकता हूँ। मिसाल के तौर पे EU डिसइंफो लैब इज़ वन एग्जांपल। इसका पाकिस्तान से आपको पता है कोई ताल्लुक नहीं, एक थर्ड इंडिपेंडेंट बॉडी है और ये EU की है। EU वाले, यूरोपीय यूनियन वाले ये कहते हैं कि 15 साल से भारत
इस सारी पॉलिसी को लेके चल रहा था, जिसका एग्रेशन जो है वो गुज़िश्ता इन 2 टेन्योर्स मोदी का जिक्र करते हैं कि इसके अंदर ज़्यादा बढ़ता हमने देखा, और ऐसी मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ की गई कि दुनिया के अंदर पाकिस्तान का इमेज बुरा दिखाया जाए, और पाकिस्तान इसको ना ब्रेक करता है, ना पाकिस्तान इसका जिक्र करता है, ना पाकिस्तान इसमें कुछ हेल्प आउट करता है। अगर ऐसी और बहुत सारी निशानदहियाँ की जाती हैं तो इंडिया बजाय इसके कि उस पर चीज़ों को बेहतर करे और आगे बढ़े, वो ब्लेम गेम के अंदर शुरू कर देता है और उसका गुस्सा कहीं और निकालने लग जाता है। ये क्या गलत अमल नहीं है? मुर्तज़ा साहब, हिंदुस्तान में जो ये राइट विंग गवर्नमेंट है पिछले 2 टर्म से चल रही है, इसका एक ही ऑब्जेक्टिव रहा है कि मुसलमान इस मुल्क में एक दोयम दर्जे के सिटीजन है, नागरिक है, और ये इस चीज को अपने हर एक्शन से जस्टिफाई करते हैं। जैसे जगहों के नाम बदल देना, इमारतों के नाम बदल देना, सड़कों के नाम बदल देना, उनके जो जाती मसलात हैं, जो उनके पर्सनल कस्टम्स हैं, उनमें इंटरफियर करना, इस तरीके के कानून बनाना। जैसे लव जिहाद का नाम सुना होगा आपने, जैसे 3 तलाक का नाम सुना होगा आपने। इस तरह के कानून बनाना जानबूझ करके उनके जो जाती मामले हैं उनमें इंटरफियर करना, ये एक इनका फैशन रहा है। इनके कई मुख्यमंत्री जो हैं, जैसे आदित्यनाथ है उत्तर प्रदेश के, चाहे मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान है, चाहे मनोहर लाल खट्टर है, ये सब आरएसएस वाले लोग जो हैं, उनका एक ही एजेंडा है कि किसी तरीके से यहां पर जो हिंदुस्तान में मुसलमान हैं उनको दूसरे दर्जे पर रखा जाए, उनकी हर चीज के अंदर दखलंदाजी की जाए। देखिए, मेरा इसमें एक बड़ा स्पष्ट एनालिसिस है। हिंदुस्तान के कुछ लोग जो ये राइट विंगर हैं, ये एक हवा बना के रखे हुए हैं कि कोई भी बात अगर सरकार के खिलाफ बोलेगा, तुम पाकिस्तान चले जाओ, ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान की बात करता है, पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं ये पूछता हूं इस सरकार से कि तुम्हारा दुश्मन पाकिस्तान नहीं है भाई, वो तुमसे 1/4 1/6 उनकी पॉपुलेशन है, वो हर लिहाज से तुम्हारे से अपने वजूद को कायम रखे हुए है। तुम्हारा दुश्मन तो चीन है, जिसने तुम्हारी हजारों किलोमीटर की जमीन हड़प ली है। उनके सामने तुम्हारे 56 इंच के प्रधानमंत्री का कोई मुंह नहीं खुलता। उन्होंने जो कब्जा कर लिया, उन्होंने हिंदुस्तानी जो सैनिक हमारे शहीद कर दिए गलवान के अंदर, उसका कोई बदला नहीं, उनकी कोई बात नहीं करता है। अभी उन्होंने 4 किलोमीटर पर अरुणाचल के अंदर पूरा एक गांव खड़ा कर लिया अपना 1.5 साल के अंदर, एकदम बॉर्डर पर। तो इस तरीके की बात पर आप उनको कोई जवाब नहीं दे सकते। मैं सर उनके सामने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रवि साहब, इस पे आता हूं, मैं जगह साहब की तरफ जाऊंगा। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। मैं जोगा साहब की तरफ जाऊंगा। सर ये बताइएगा सिंह साहब के जिस तरह ये निशानदेही कर रहे हैं इस वक्त रवि साहब और बता रहे हैं जो सूरत हाल है, अब जो सिखों का प्रोटेस्ट जारी है, इसमें कई सिख जो है वो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। प्रोटेस्ट के अंदर हमने देखा कि कुछ शूटर भी पकड़े जा रहे हैं। ऐसे शूटर पकड़े गए जिसने खुद टीवी पे आके क्लेम किया और एडमिट किया कि जी मुझे वहाँ की मकामी पुलिस ने भेजा, जाके कहा कि ये 4 बंदे मार के आओ जो सिख कम्युनिटी के वहाँ पर मौजूद हैं लीडर्स, और उस पर एक प्रेस टॉक की और उन्होंने पुलिस के हवाले किया। और फिर इंडिया के, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहे, इंडिया के अखबारात कह रहे हैं, और फिर इंडिया के अखबार ये कहते हैं कि पुलिस वालों ने, ये भी इतलात है हमारे पास, हमारे सोर्सेज ये कहते हैं कि उसको मारा कि तुमने ये बयान क्यों दिया, और उसकी जान जो है वो मुश्किल में फंसी हुई है। ये किस किस्म की पॉलिसी है जो आगे बढ़ती चली जा रही है? गवर्नमेंट किसी सूरत भी स्टेप बैक करने को तैयार नहीं है। ये बताएं कि आप या आपकी कम्युनिटी के कोई लोग कोई और रास्ता इख्तियार करेंगे, या आप कहेंगे नहीं जी हम यहाँ पर डटे रहेंगे? डटने के लिए हिम्मत भी चाहिए, हौसला भी और पैसा भी। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਵਿਲ ਡਾਈ ਸਲੋ ਡੈਥ। ਮਾਈਟ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਹੁਣ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਚਲੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇਤਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੇ, ਇਹ ਤੋਂ
ਥੱਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਵਿਚਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ 370 ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅੜ ਗਏ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੈਲੰਜ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖੜ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੜ ਗਿਆ ਆ। ਸੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਮਝਦੀ ਆ। ਪਰ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਇਟ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ MP ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਆ, ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਆ ਗਵਾ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਜਾਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਰਿਜ਼ਾਈਨ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਗਵਾ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ नहीं हैगी जी साढ़े। ठीक है सर, तुम साढ़े नाल रहो। आखिरी सवाल सर आपसे रवि श्रीवास्तव साहब, सर ये बताएं कि अभी हमने विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया की जो पॉलिसी है उसका हमने जिक्र किया। अब थोड़ी सी बात करते हैं सिक्योरिटी के हवाले से। मुझे पता ही आपका उस तरह टॉपिक नहीं है, लेकिन मेरा सवाल उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अर्नब गोस्वामी की खबर हमें भारतीय मीडिया से पता लगी और अर्नब गोस्वामी की खबर इंटरनेशनल तमाम मीडिया ने कवर की। और अर्नब गोस्वामी का पाकिस्तान के बारे में क्या नैरेटिव रहा है, मैं उस पर नहीं जाता। चलें, मैं आपसे ये पूछता हूँ, आप मुझे ये बताइए कि जो वहाँ की ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं, बीजेपी के जो अगेंस्ट हैं, ओपोनेंट हैं, इस वक्त वो बरसरे पेकार हैं। वो अर्नब गोस्वामी वाले सारे मैटर को, अर्नब गोस्वामी इज़ अ फेस, वो इस चीज़ को लेके बड़े गुस्से में है, एग्रेशन में है कि भाई आपने इस सिक्योरिटी को लेके ये जो पॉलिसीज़ बनाई और ये जो सारी व्हाट्सएप कॉल और मैसेजेस जो चैट लीक हुए, वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रही हैं दैट आपको पता था कि पुलवामा का हमला होने जा रहा है, आपको पता था कि आप पाकिस्तान के साथ उसके रिबटल में क्या करने जा रहे हैं। आपको इस सारी एक्सरसाइजेस के अंदर अपने भारतीय फौजी खुद मरवाना पड़े, आपको पाकिस्तान से उसका जवाब खाना पड़ा, आपको हजीमत उठानी पड़ी। इस सारी एक्सरसाइज का क्या मकसद, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि ये सारा कर लेने से कौन सा आपने बड़ा तीर मार लिया जो आज से पहले आपने नहीं मारा था, और किस किस्म की सिक्योरिटी है कि उसकी ब्रीचेस इस जगहों पे इस तरह से हो रही हैं। तो साहब 90% हिंदुस्तान के जो चैनल हैं उनको मोदी मीडिया के बजाय उनको गोदी मीडिया कहा जाता है, बिकॉज दे आर सिटिंग इन द लैप ऑफ मिस्टर मोदी, तो उन्हें गोदी मीडिया कहते हैं। और उनमें से जो रिपब्लिक टीवी जिसका आपने नाम लिया, अर्नब गोस्वामी जो उसके बड़े चीफ एंकर हैं, CEO हैं, उन्होंने उनको इस तरह के चैनल्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से एडवांस इंफॉर्मेशन दी जाती है, ऐसा उनकी चैट से जाहिर हो गया है। और जो पूरी चैट 500 पेज की है वो एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। वो हिंदुस्तान के बॉम्बे हाई कोर्ट में पुलिस ने, मुंबई की पुलिस ने वो सबमिट की है। तो वो डॉक्यूमेंट कोई मतलब पब्लिक डॉक्यूमेंट बाहर का नहीं है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पब्लिक डोमेन में है, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। और जिस तरह से अर्नब गोस्वामी को प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से या इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के ऑफिस से पहले से इंफॉर्मेशन दी गई, ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। और ये शो करता है कि सिर्फ अर्नब गोस्वामी नहीं, उस तरह के और भी बहुत सारे चैनल के जो CEOs हैं उनके साथ में इस तरह की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है पब्लिक में एक नैरेटिव क्रिएट करने के लिए। ये सब पब्लिक में नैरेटिव क्रिएट किया जाता है। सर वो भी तो क्रिएट नहीं हो रहा नैरेटिव, यही सवाल है कि वो क्रिएट भी नहीं हो पा रहा, वो एक्सपोज हो जाता है, लीक हो जाती है सारी चीजें और आप दुनिया के आगे एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं। एक्सपोज हो रहे हैं, यस, वो एक्सपोज हो रहे हैं इस तरीके की अपनी हरकतों से। मगर उनकी कोशिश अब तक यही थी कि इससे एक नैरेटिव बनाया जाए पब्लिक के अंदर कि मोदी कितना एग्रेसिवली काम कर रहा है, मोदी कितना बदला ले रहा है, या मोदी किस तरह से यहाँ पे देश की रक्षा के लिए अब जो नेशनलिज्म का एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता है हिंदुस्तान में, वो बनाने की कोशिश की जाती है। मगर अब वो एक्सपोज हो रहे हैं क्योंकि एक्सपोज हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ रवि श्रीवास्तव साहब मौजूद है, जोगा सिंह साहब
मौजूद थे। रवि साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, मौजूद हैं मुंबई के अंदर। जोगा सिंह साहब वर्ल्ड सिख रिप्रेजेंटेटिव हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं। बहुत शुक्रिया आप सबके वक्त का।